So Ritika has explained you what is the meaning of counseling, what is the difference between counseling and guidance, and some specialities of counselor. Now the next subject, the next domain is about assessment in counseling. That is MPC 22. So I will just take you to the subject directly. This is the unit 1. Last time Ritika taught taking unit and I used PPT in first year. Now reverse, she is using PPT, I am using units. So assessment in counseling and guidance. As you understood the difference between guidance and counseling, guidance is just offering a suggestion and counseling is understanding the problem and directing individual to find out the solution of the own problem. That is the basic difference. Another basic difference is counseling is always one-to-one. Many people claims they can do counseling to one-to group, but that is not counseling, it is guidance. So you have to remember these two differences. The question may come, differentiate between counseling and guidance and elaborate. So this kind of question may come. Now in the second subject, MPC 22, we are trying to understand how psychological test, psychological assessment help counselor or psychologist to counsel the counselee, to counsel the subject, to counsel the client. The word subject, client and counselee has synonymous meaning, but normally when research is done, we called the person subject. When counseling is given, the person is called as counselee. And when disorder or some kind of abnormality is handled, the person is called as client. So that is the difference. Now just understand the introduction, what is written in your introduction. This time I am uniquely giving you certain input, writing this aside. This method is discovered by Ritika. I am using it effectively. I am choosing one statement from the which is given in the book, and then I am explaining and elaborating it through this kind of short note. So this unit itself will help you as a note also. So somebody asked me about sir note देंगे क्या, तो मैंने सोचा कि चलो इस प्रकार नोट्स बना दी जाएंगी और दे भी दी जाएगी. As this unit will be completed, this document will be sent on your mail. Now just understand this one line. Once assessment is the process of collecting information with regard to abilities, interest, aptitude, personality, attitude and belief. So what do we do? हम क्या करते हैं?
हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। किसकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं? उस व्यक्ति के क्षमता की, एबिलिटीज़ की, उस व्यक्ति के इंटरेस्ट की, उस व्यक्ति के एप्टीट्यूड की, उस व्यक्ति के पर्सनालिटी की और उस व्यक्ति के एटीट्यूड और बिलीफ की। यहाँ मैं आपको बता दूँ पर्सनालिटी और एटीट्यूड का क्या संबंध होता है। पर्सनालिटी इज कंस्ट्रक्टेड विद द हेल्प ऑफ इनबॉर्न ट्रेट, इनहेरिटेड ट्रेट एंड learning in the society or learning in school. But whatever the personality you possesses or someone possesses is always reflected in the attitude. Means attitude exhibits the personality. Attitude वो आईना है जिसमें व्यक्ति की पर्सनालिटी को हम देख सकते हैं। सिमिलरली बिलीफ भी वो आईना है जिसमें हम व्यक्ति की पर्सनालिटी को देख सकते हैं। यानी किसी व्यक्ति की पर्सनालिटी को समझना है तो आप उसकी एटीट्यूड और उसके बिलीफ को समझिएगा। अब मैं इन शब्दों को और क्लियर करता हूँ। ये जो नोट्स मैंने लिखी है, एबिलिटीज इंक्लूड्स इंटेलिजेंस, स्किल्स एंड एक्सपर्टाइज। जब हम एबिलिटी की बात करेंगे तब हम इंटेलिजेंस की बात करते हैं, उस इंसान के स्किल्स की बात करते हैं और उस इंसान के एक्सपर्टाइज की बात करते हैं। अब इंटेलिजेंस कितने प्रकार के होते हैं ये आपने फर्स्ट ईयर में सीखा है। जनरल इंटेलिजेंस होता है, स्पेसिफिक इंटेलिजेंस होता है, मल्टीपल इंटेलिजेंस होता है, गार्डनर का मल्टीपल इंटेलिजेंस होता है। अब मैं उसके डिटेल में नहीं जाता। स्किल्स कितने प्रकार के होते हैं? नॉर्मली 3 प्रकार के स्किल्स होते हैं। कंसेप्चुअल स्किल होता है, टेक्निकल स्किल होता है और बिहेवियरल स्किल होता है। तो हम जो डीलिंग करते हैं, साइकोलॉजिस्ट जो डीलिंग कर रहा है वो बिहेवियरल स्किल में करता है। दूसरा, इंटरेस्ट इंक्लूड्स सिलेक्टिव अटेंशन टू एक्टिविटी और गोल ऑफ द पर्सन। इंटरेस्ट क्या होता है व्यक्ति का? ये बैज वाला इंटरेस्ट नहीं है, ये इंटरेस्ट इंक्लिनेशन ऑफ द माइंड। हमारा माइंड का झुकाव किस तरफ है वो इंटरेस्ट है। और यह बेसिकली सिलेक्टिव अटेंशन। तो अटेंशन क्या है? अटेंशन इज अ प्रोसेस ऑफ अ कॉग्निशन एंड कॉग्निटिवली व्हेन अ पर्सन अटेंड्स ऑन स्पेसिफिक एक्टिविटी और स्पेसिफिक गोल, then the person is inclined towards that particular activity. उदाहरण के लिए स्टूडेंट या तो नेचर के तरफ अट्रैक्ट होगा या साइंस के तरफ अट्रैक्ट होगा। तो कोई स्टूडेंट अगर अपने चाइल्डहुड में नेचर में खुश रहता है, नेचर में जाकर एनिमल्स के फोटोग्राफ्स लेता है, पक्षियों को वॉच करता है, जैसे आपने 3 इडियट में देखा होगा, वो बंदा इंजीनियरिंग में डाल दिया गया लेकिन उसको बेसिकली फोटोग्राफी का इंटरेस्ट था। मैं इसको नाम नहीं याद अभी वो बंदे का, तो उसको फोटोग्राफी का इंटरेस्ट था। जबकि जो आमिर खान है, रैंचो जो है, वो बेसिकली इंजीनियरिंग और साइंस में इंटरेस्ट रखता था। तो इंटरेस्ट भी हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है गाइडेंस और काउंसलिंग में, पर्टिकुलरली काउंसलिंग में। फिर एप्टीट्यूड क्या होती है? ये वर्ड आपने बहुत बार सुना है। साइकोलॉजिस्ट ने अनेक प्रकार के एप्टीट्यूड पर काम किया है। एप्टीट्यूड स्किल भी होता है और एप्टीट्यूड एबिलिटी भी होती है। एक वर्ड है कॉम्पैटिबिलिटी, means competency and ability. So aptitude is your compatibility, मतलब आप कितने कॉम्पिटेंट हैं किसी एरिया में और कितने एबल है, ये दोनों का मिश्रण, दोनों का कॉम्बिनेशन एप्टीट्यूड होता है। अब एप्टीट्यूड पर जो रिसर्च हुआ है वो अधिकतर वर्बल एप्टीट्यूड, वर्बल रीजनिंग भी बोलते हैं इसको। पर्टिकुलरली वर्बल एप्टीट्यूड और वर्बल रीजनिंग उनका अच्छा रहता है
जिनका जिनका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा रहता है। फिर न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड या न्यूमेरिकल रीजनिंग भी बोलते हैं इसको। तो न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड या न्यूमेरिकल रीजनिंग वो होता है जो पर्टिकुलरली इंजीनियर्स का बहुत अच्छा होता है, जो मैथमेटिशियंस होते हैं उनका बहुत अच्छा होता है। स्पेशियल, ये बेसिकली 3 डायमेंशन में विजुअलाइज करने की क्षमता। हम आसानी से 2 डायमेंशन में तो चीज़ों को समझ लेते हैं, बट 3 डायमेंशन में चीज़ें कैसे रखी जा सकती है, कैसे अरेंज की जा सकती है, ये पर्टिकुलरली स्पेशल एप्टीट्यूड फोटोग्राफी में काम आता है। इंजीनियरिंग में भी बहुत इसका रेलेवेंस होता है। सिविल इंजीनियरिंग में बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है स्पेशल एप्टीट्यूड की। मैकेनिकल मतलब बेसिकली स्टेप बाय स्टेप थिंकिंग कह सकते हैं। हाउ द मैकेनिक्स, हाउ द मशीन विल वर्क, हाउ अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ डेड ऑब्जेक्ट कैन बी मेड फंक्शनल। हम इनफैक्ट सभी लोग अपने सराउंडिंग में अनेक मशीनों को देखते हैं। हमारे घर में फ्रीज होता है, हमारे घर में गैस होता है, हमारे घर में सिलेंडर होता है। तो दीज आर ऑल टूल्स वर्क्स ऑन मैकेनिक्स, प्रिंसिपल्स ऑफ मैकेनिक्स। रीजनिंग में एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग होती है, कॉन्क्रीट रीजनिंग होती है। रीजनिंग वैसे बहुत प्रकार की होती है, लेकिन हमारे साइकोलॉजी में 2 प्रकार की रीजनिंग को बहुत ज़्यादा वैल्यू है। दैट इज एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव रीजनिंग। वैसे तो टोटल 12 प्रकार की रीजनिंग होती है, लेकिन इंडक्टिव, डिडक्टिव रीजनिंग और एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग ये इंटेलिजेंस के बहुत अच्छे और पैमाने होते हैं। क्लरिकल स्पीड, सो रिएक्शन टाइम किसका कम है, हाउ स्पीडीली यू कैन डू द एक्यूरेट वर्क। एक्यूरेसी, अभी एक्यूरेसी को बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं है क्योंकि कंप्यूटर ने हमारे एक्यूरेसी का प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया है। साइंटिफिक एटीट्यूड, साइंटिफिक प्रिंसिपल व्यक्ति को कैसे समझते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट लाइन ऑफ इंट्रोडक्शन। एनी डाउट, अगर कोई सवाल हो तो पूछ लो, फिर मैं आगे जाता हूं। चलिए हम सवालों को आखिरी में लेंगे। फॉर्मल असेसमेंट इज प्लान्ड and is based on certain predetermined criteria, whereas some assessment techniques are non-standardized such as case studies, interview and observation. अब हमको आगे में जो पढ़ना है वो इंट्रोडक्शन में लिखा है। तो फॉर्मल असेसमेंट 2 प्रकार की होती है, एक साइकोलॉजिकल टेस्ट होती है और दूसरी साइकोलॉजिकल या साइकोमेट्रिक स्केल होती है। राइट नॉमेनक्लेचर है साइकोमेट्रिक टेस्ट एंड साइकोलॉजिकल स्केल, ये राइट नॉमेनक्लेचर है। साइकोलॉजिकल टेस्ट, साइकोमेट्रिक टेस्ट एंड साइकोलॉजिकल स्केल यह स्टैंडर्डाइज्ड इंस्ट्रूमेंट होते हैं, रिसर्च के आधार पर बनते हैं। और केस स्टडीज, इंटरव्यू और पर्सनल ऑब्जर्वेशन ये नॉन स्टैंडर्डाइज्ड टूल कहते हैं। असेसमेंट के लिए हम किसी भी मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। असेसमेंट के लिए हम स्टैंडर्डाइज्ड टूल भी यूज कर सकते हैं जो कि स्केल या टेस्ट होगा, और हम केस स्टडी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इंटरव्यू का भी कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन का भी कर सकते हैं। मैं इसके डिटेल में आगे में जाऊंगा। फिर डेफिनेशन ऑफ असेसमेंट एंड हाउ असेसमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम इवैल्यूएशन। ये सवाल नॉर्मली बहुत एक्सपर्ट पूछते हैं कि असेसमेंट और इवैल्यूएशन में फ़र्क क्या है। तो मेरा अक्सर ये कहना है सिमिलैरिटी ज़्यादा है, फ़र्क बहुत कम है, फिर भी फ़र्क है। अब किताब में क्या लिखा है, द डेफिनेशन ऑफ असेसमेंट फॉर आवर पर्पस कैन बी द प्रोसेस ऑफ collecting information to be used
as the basis of informed decision by the assessor or by those whom results are communicated. Simply, assessment एक प्रोसेस है, असेसमेंट एक प्रक्रिया है, जिस प्रक्रिया में हम उस व्यक्ति के संबंधित इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं और उस इंफॉर्मेशन के आधार पर उस व्यक्ति को हमारा कोई निर्णय या हमारा कोई सजेशन देते हैं ताकि वो व्यक्ति स्वयं के बारे में क्लैरिटी रख सके। अब यहीं पर मैं आपको असेसमेंट और इवैल्यूएशन का फर्क भी समझा देता हूं। असेसमेंट इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ अप्राइजिंग समवन, यानी किसी व्यक्ति के अगर हम किसी फैक्टर का असेसमेंट करते हैं, जैसे हम पर्सनैलिटी का असेसमेंट करते हैं, एक स्केल है आइजैंग पर्सनैलिटी क्वेश्चनियर। आइजैंग पर्सनैलिटी क्वेश्चनियर में हम 4 फैक्टर का असेसमेंट करते हैं। एक है साइकोटिसिज्म, दूसरा है एक्सट्रोवर्शन, तीसरा है न्यूरोटिसिज्म और चौथा है सोशल डिजायरेबिलिटी। तो ये 4 फैक्टर हम उस पर्टिकुलर स्केल्स को कंडक्ट करके निकालते हैं और वो जो स्कोर हमको मिलता है उस स्कोर के आधार पर हम उस व्यक्ति को कहते हैं कि तुम्हारा न्यूरोटिसिज्म लेवल कितना है, तुम्हारा एक्सट्रोवर्शन लेवल कितना है, तुम्हारा साइकोटिसिज्म लेवल कितना है। पर्टिकुलरली हम फिर सादे भाषा में कहते हैं कि न्यूरोटिसिज्म पे आप लो है, एक्सट्रोवर्शन पे आप हाई है और साइकोटिसिज्म पे आप मॉडरेट है या एवरेज है और सोशल डिजायरेबिलिटी आपकी लो है। तो हम हाई, मॉडरेट और लो इन पर्टिकुलरली 3 लेवल्स पर किसी व्यक्ति को जनरली एसेस करते हैं। अब साइकोलॉजिस्ट ने इन लेवल्स को और थोड़ा बढ़ा दिया है। कुछ साइकोमेट्रिक टेस्ट में यह लेवल वेरी लो, मॉडरेट, वेरी हाई एंड वेरी हाई 5 पॉइंट पर डिवाइड हो जाता है। अब इवैल्यूएशन को समझते हैं। इवैल्यूएशन फोकसेस ऑन मेकिंग अ जजमेंट अबाउट वैल्यूज, नंबर्स और परफॉर्मेंस ऑफ समवन। सो समवन इज देयर, असेसमेंट में भी समवन इज देयर एंड इवैल्यूएशन में भी समवन इज देयर। अब जब वो समवन है जिसको हम अप्राइज कर रहे हैं, जिसका हम स्कोर निकाल रहे हैं इन टर्म्स ऑफ साइकोटिसिज्म, जब हम इस स्कोर के आधार पे उसको बताते हैं कि तुम्हारा लेवल क्या है, और पर्टिकुलरली सिर्फ ईपीक्यू टेस्ट लेकर नहीं, मैं ईपीक्यू टेस्ट जब मेरे पास कोई करियर गाइडेंस के लिए आता है तो मैं उसका ईपीक्यू टेस्ट लेता हूँ और इंटेलिजेंस टेस्ट भी लेता हूँ। दोनों टेस्ट लेके मैं उसको कहता हूँ, कल ही कुंटे सर और उनके बेटे आए थे, मैंने 2 टेस्ट उनकी ली और इंटेलिजेंस के बारे में उनको नैरेट किया। तो जब मैं इंटेलिजेंस टेस्ट और पर्सनालिटी टेस्ट और इंटरेस्ट टेस्ट तीनों लेता हूं और तीनों के स्कोर को मिलाकर होलिस्टिकली उस व्यक्ति के बारे में बताता हूं, होलिस्टिकली उस व्यक्ति के पूरे मेंटालिटी के बारे में बताता हूं, तो उसे इवैल्यूएशन कहते हैं। असेसमेंट इज अंडरस्टैंडिंग द psychological factor within the mentality, whereas evaluation is holistic assessment, holistically information is given about the whole person। बस ये डिफरेंस है। इवैल्यूएशन का हिस्सा असेसमेंट है। असेसमेंट करते मतलब हम इवैल्यूएट करने के लिए ही असेसमेंट करते हैं। Evaluation is always done after assessment of some character or trait of a person। यही बात मैंने आपको अभी समझाई। We do assess intelligence or aggression of the person and then we evaluate a person on the basis of aggression and intelligence। यानी हम क्या करते हैं, एग्रेशन
यह बेसिक इमोशन को एसेस कर रहे हैं और इंटेलिजेंस को एसेस करते हैं और फिर कहते हैं कि भाई इंटेलिजेंस और एग्रेशन के आधार पर तुम्हारा स्वभाव कैसे हो सकता है। पर्टिकुलरली मैं जब प्रैक्टिस करता हूं तो मैं जो साधारण लड़के होते हैं जिनमें कोई एबनॉर्मेलिटी नहीं होती, उनके लिए 2 टेस्ट लेता हूं, इंटेलिजेंस टेस्ट और पर्सनालिटी टेस्ट। अब मुझे ऐसा लगा कि व्यक्ति का इंटरेस्ट और इंक्लिनेशन क्लियर नहीं है तो मैं इंटरेस्ट टेस्ट ले लेता हूं, या फिर मैं ऑब्जर्वेशन का इस्तेमाल करता हूं। कुंटे सर मेरे साथ एग्री होंगे, कल जब उनका लड़का मेरे पास आया था तो मैंने ऑब्जर्वेशन का इस्तेमाल किया। उनके लड़के ने कहा कि सर मुझे इंजीनियरिंग में भी इंटरेस्ट नहीं है और मुझे मेडिसिन में भी नहीं जाना। तो मैंने ऑब्जर्व कर लिया, नॉर्मली ये बंदा उस लाइन से नहीं जाना चाहता जो नॉर्मली सब लोग प्रीफर करते हैं। तो मैंने उसको तीसरा सजेशन दिया और तीसरा सजेशन देते बराबर उसके चेहरे पे थोड़ा सा रौनक आ गई, उसको अच्छा लगा। तो ये मैंने ऑब्जर्वेशन के आधार पर किया, मतलब मैंने साइकोलॉजिकल टेस्ट का भी इस्तेमाल किया और ऑब्जर्वेशन का भी इस्तेमाल किया व्यक्ति को काउंसलिंग करने में। सो लाइक दैट। यहां तक कोई डाउट है? नो सर। चलिए अब हम चलते हैं, एक छोटा सा पॉइंट यहाँ लिखा है, बाकी के जो पॉइंट लिखे हैं ना वो मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन करते जा रहा हूँ, इसलिए मैं उसको पढ़ता नहीं हूँ, नहीं तो आपको बहुत बोरिंग हो जाएगा। मैं पढ़ता नहीं हूँ उनको, मैं जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसी को एक्सप्लेन करता हूँ। और इतना भी आपने अगर ध्यान में रख लिया तो आपको कोई भी 80% से ज़्यादा स्कोर करने से नहीं रोक सकता। The point of assessment is often diagnosis और classification। जब हम assessment करते हैं तो हम क्या करते हैं? हम diagnosis करते हैं। फिर diagnosis क्या है? या फिर हम classify करते हैं। तो classification क्या है ये आपकी किताब में नहीं दिया है, तो मैंने आपको यहाँ पर explain करने की कोशिश की है। अभी इसको आप देर आर 6 टाइप ऑफ असेसमेंट, 6 प्रकार के असेसमेंट हैं। ये आगे शायद किताब में कहीं आएंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि यही मैं समझा दूं ताकि आगे में मेरी एनर्जी बच जाए, क्योंकि यहाँ क्लैरिटी नहीं है। डायग्नोस्टिक असेसमेंट कहते हैं। तो डायग्नोस्टिक असेसमेंट में हम व्यक्ति की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को पहचानते हैं। जैसे मेरे पास कोई काउंसलिंग करने के लिए स्टूडेंट आता है तो मैं उसकी स्ट्रेंथ को समझता हूँ। तो स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है कि उसका इंटेलिजेंस लेवल क्या है, वो एवरेज लेवल का इंटेलिजेंस रखता है या हायर लेवल का इंटेलिजेंस रखता है, बहुत हाई लेवल का इंटेलिजेंस है, वो व्यक्ति जीनियस है, उसका इंटेलिजेंस का स्कोर 125 और 130 को क्रॉस कर रहा है, तो ऐसे लोगों को मेडिसिन में जाने से मैं बेझिझक कह सकता हूँ। लेकिन कोई व्यक्ति आ गया जिसका इंटेलिजेंस का जो स्कोर है वो 90 है, 100 से कम है, और वो चाहता है, उसका इंटरेस्ट है कि मैं मेडिसिन में जाऊं, तो यहाँ पर काउंसलर की जवाबदारी बढ़ जाती है। उस व्यक्ति को पॉजिटिवली ये समझाना है कि तेरा स्कोर कम है, और यहाँ पर काउंसलर की पूरी क्षमता का इस्तेमाल होता है। अब पॉजिटिवली समझाना कि स्कोर कम है, मतलब अब क्या है, वो उसकी वीकनेस है, उसका आईक्यू लो है, इंटेलिजेंस लो है, तो पॉजिटिवली आप कैसे समझाएंगे? बस यही कला होती है किसी काउंसलर की, और यही काउंसलिंग वैल्यूएबल होती है। मैं कैसे समझाता हूं, मैं आपको बताता हूं। मैं ये बताता ही नहीं कि उसका आईक्यू लो है। मैंने अगर इंटरेस्ट टेस्ट लिया है
और मैंने इंटरेस्ट टेस्ट में अगर देख लिया कि ये व्यक्ति का इंटरेस्ट नेचुरलिस्टिक चीज़ों में है, तो मैं नेचुरलिस्टिक जो चीज़ें हैं, नेचर के साथ जो काम करना है, जैसे एनजीओ में काम करना है, सोसाइटी में जो डिस्कार्डेड लोग हैं, ट्राइबल्स में जाके काम करना है, या फिर वो व्यक्ति डॉक्टर नहीं बन सकता तो टेक्नीशियन बन सकता है, नर्स बन सकता है, तो इस व्यक्ति को इंटेलिजेंस न बताते हुए मैं ये बताता हूं कि दूसरे एरिया में उसकी स्ट्रेंथ क्या है। मैं उसको कहता हूं कि जैसे मैंने उसका एप्टीट्यूड ले लिया और मैंने कहा कि यू आर वेरी गुड इन क्लरिकल एप्टीट्यूड। मुझे मालूम है व्यक्ति इंटेलिजेंस में लो है, तो मैं कहता हूँ कि यू आर वेरी गुड इन क्लरिकल एप्टीट्यूड, वाई कांट यू ट्राई दैट महाराष्ट्र गवर्नमेंट का एक क्लार्क का एग्जाम होता है, वाई कांट यू ट्राई दैट, यू विल गेट अ गवर्नमेंट जॉब। सो इस प्रकार काउंसलर उस व्यक्ति के स्ट्रेंथ को हाईलाइट करता है और वीकनेसेस को पर्टिकुलरली हाईलाइट करने से बचता है। अगर कुछ कुछ केसेस में वीकनेसेस बतानी भी हैं तो आप पेरेंट को बताइए, क्लाइंट को मत बताइए। इस बात का काउंसलर को ध्यान रखना है। दैट इज कॉल्ड एज डायग्नोस्टिक असेसमेंट। अब दूसरा फॉर्मेटिव असेसमेंट, इन प्रोसेस असेसमेंट ऑफ नीड्स। उस व्यक्ति की ज़रूरत क्या है, यह प्रोसेस में ही होता है। जब हम असेसमेंट करते रहते हैं तो उस क्लाइंट से, उस काउंसलर से हम डिस्कशन भी करते रहना चाहिए, और उस प्रोसेस के दौरान में हमको ये समझना चाहिए इस व्यक्ति का कॉम्प्रिहेंशन लेवल कैसा है, इस व्यक्ति का कम्युनिकेशन लेवल कैसा है। जैसे कल मैंने कुंटे सर के लड़के के केस में नोट किया कि कम्युनिकेशन वीक है, तो मैंने कुछ ऐसी सलाह दे दी कि मैंने हाईलाइट नहीं किया कि कम्युनिकेशन बहुत वीक है, मैंने उस पर जोर नहीं दिया। मैंने कहा कि अरे भाई बहुत अच्छा हो जाएगा आपका कम्युनिकेशन, आप हिंदी, इंग्लिश और मराठी बस 3 पेपर डेली, उसका 1 पेज 1 साल पढ़ो, आपका कम्युनिकेशन परफेक्ट हो जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड एज फॉर्मेटिव असेसमेंट एंड फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। वहीं पर सलाह भी दे दी। देन समेटिव। समेटिव में क्या होता है, असेसमेंट एट द एंड ऑफ होल प्रोसेस। हम 3-4 टेस्ट ले लेते हैं, हम 3-4 टेस्ट ले लेते हैं और फिर उस व्यक्ति के 3-4 टेस्ट के स्कोर को खुद समझते हैं कि उस स्कोर का मीनिंग क्या होता है, उस स्कोर का इंटरप्रिटेशन क्या होता है, कौन सा स्कोर उस व्यक्ति के फायदे का है और काम का है, कौन से स्कोर की उसको ज़्यादा उपयोगिता है, यूटिलिटी है। तो फिर हम 3-4 टेस्ट के स्कोर को समझकर उसको पूरी असेसमेंट प्रक्रिया खत्म होने के बाद इवैल्यूएशन के आधार पर हम उसको गाइड करते हैं। दैट इज कॉल्ड एज असेसमेंट एट द एंड ऑफ होल प्रोसेस। एक है इप्सेटिव, फोर्स चॉइस यूज इन पर्सनैलिटी फैक्टर असेसमेंट। ये बेसिकली टेस्ट में होता है, यस या नो की ऑप्शन होती है, यस, डोंट नो या नो की ऑप्शन होती है, 2 या 3 ऑप्शन होती हैं, जहां पर हम व्यक्ति को फोर्सली कहते हैं कि भाई 2 में से 1 चुनो। देन नॉर्म रेफरेंस, यह स्टैंडर्डाइज साइकोलॉजिकल स्केल में होता है। वहाँ पर 5 साल 10 साल के रिसर्च के बाद उस टेस्ट या स्केल बनाने वाले ने नॉर्म्स दिए होते हैं। जैसे हर टेस्ट का रिलायबिलिटी वैलिडिटी होता है, वैसे नॉर्म्स होते हैं, और उसके आधार पर हम, उस व्यक्ति ने 1000 लोगों का टेस्ट करके नॉर्म्स बनाए होते हैं कि भाई ये स्टैंडर्ड नॉर्म्स हैं। तो हम क्या करते हैं, एक व्यक्ति की तुलना उस 1000 व्यक्ति के नॉर्म्स में करते हैं। पर्टिकुलरली इसमें स्टैटिस्टिकल टूल का इस्तेमाल होता है। मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिकल मेजर्स होते हैं। इसके अलावा स्टैंडर्ड स्कोर लाइक जेड स्कोर,
टी स्कोर, अलग अलग प्रकार के जो स्कोर होते हैं, स्टेनाइन स्कोर होता है, एक स्टेन स्कोर होता है, परसेंटाइल स्कोर होता है, उसका भी इस्तेमाल किया जाता है। दैट इज कॉल्ड एज स्टैंडर्डाइज स्कोर, उसको बोलते हैं नॉर्म रेफरेंस असेसमेंट। और फिर है क्राइटेरिया रेफरेंस असेसमेंट, इसमें कोई क्राइटेरिया फिक्स किया जाता है। अब बहुत अच्छा क्राइटेरिया आप लोगों को मालूम है, एग्जाम पासिंग परसेंटेज 35 10वीं तक, और उसके बाद में अभी आपको पास करना है तो क्या परसेंटेज है, 40। साइकोलॉजी में पास होना है तो 40, तो 41% मिले तो आप पास और 39% मिले तो आप फेल। अब 41% मिले तो आप बहुत होशियार और 39% मिले तो आप गब्बू, ऐसा नहीं होता। बट क्राइटेरिया बेस्ड असेसमेंट के आधार पर इसे मान लिया जाता है। 41% मतलब पास एंड 39% मतलब फेल, तो इसको कहते हैं क्राइटेरिया बेस्ड असेसमेंट। अब पर्पस ऑफ द असेसमेंट यहां बहुत क्लियरली दिया है, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, टू डायग्नोस द स्टूडेंट्स प्रॉब्लम, टू हेल्प इन करियर प्लानिंग एंड एजुकेशन, टू हेल्प predict the future performance and to evaluate the outcome of counseling। 5 पर्पस दिए हुए हैं यहाँ पर, ये रटना ही पड़ेगा अगर एग्जाम में लिखना है तो। स्वयं को समझना चाहिए, समझते आना चाहिए, स्टूडेंट के प्रॉब्लम को डायग्नोस करना है। डायग्नोस करना और समझने में फर्क होता है। डायग्नोसिस साइंटिफिक टूल्स के आधार पर किया जाता है, जजमेंट के आधार पर नहीं। करियर प्लानिंग और एजुकेशन में असेसमेंट का बहुत अच्छा इस्तेमाल होता है, जो नॉर्मली हम स्टूडेंट काउंसलिंग में करते हैं, स्टूडेंट करियर काउंसलिंग में करते हैं। फ्यूचर परफॉर्मेंस कैसा होगा, अगर उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति का क्रिएटिविटी टेस्ट पर बहुत अच्छा स्कोर आया है, वेरी हाई स्कोर आया है, तो हम उस व्यक्ति को सलाह दे सकते हैं, तुम NID में जा सकते हो, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइनिंग तुम्हारे लिए सही लोकेशन है, NID में जाओ और बाद में अच्छे एडवर्टाइजमेंट को क्रिएट करो। तो प्रेडिक्टिव वैल्यू भी होती है असेसमेंट की। और इवैल्यूएट द आउटकम ऑफ काउंसलिंग, काउंसलिंग का जो क्रक्स है, काउंसलिंग का जो फाइनल जजमेंट है या फाइनल रिजल्ट है, वो भी हम निकाल सकते हैं। अभी 5 मिनट बचे हैं, तो प्रिंसिपल्स ऑफ असेसमेंट लगभग 10 पॉइंट है। नॉर्मली एक यूनिट में दो क्लास में ख़त्म करूँगा। अभी 1.9 तक हमको जाना है, अभी 1.3 हो गया है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो, सवाल हो तो 5 मिनट में पूछ लो, ये मीटिंग 5 मिनट के बाद ख़त्म हो जाएगी। फिर देन यू विल ज्वाइन विद द चेतना। और आज शाम को आप सबको के लिए बता दूं मैं, आज शाम को हम जनरल डिस्कशन करेंगे एक सेशन को लेके, कोई क्लास नहीं लेने वाले, और वो पूरा जनरल डिस्कशन मेरे साथ होगा। मे बी 40 मिनट, मे बी 80 मिनट्स, मे बी 120 मिनट्स, आपका इंटरेस्ट जब तक बना रहेगा, लेकिन दैट विल बी ए जनरल डिस्कशन। मैंने बहुत सारी जनरल चीज़ें बता दी हैं आपको, इसके बावजूद भी हम जनरल डिस्कशन करेंगे। मेरा दावा है 5 साइकोलॉजी के सेशन आपके होने के बाद हम तीनों लोगों के साथ आपको साइकोलॉजी समझना शुरू हो जाएगा। आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट इट। अब आपको कोई सवाल हो तो पूछ लो, 4-5 मिनट बचे हैं अपने पास।